sit down. वाह, very good. That's Well nice. Well done. Now it is okay. अच्छा, आइए, come on. So that day, good afternoon everybody. Listen, थोड़ा serious रहिए. That day we discussed about infinitives. What did we discuss about? Infinitive. इसको पहले एक बार ऑफ करके तो फिर ऑन कीजिएगा. एक बार ऑफ कर दीजिए. तो वॉश कर हल्का सा, हाँ, हल्का सा ऑफ कर दीजिए. ऑन कर दीजिए. हाँ सर. जाइए ना, बनाइए, कोई बात नहीं. ऑन है ना बाबू? हाँ सर. हाँ, ठीक है. हाँ, so that day we discussed about infinitives, okay? And what did we discuss? ये आपको recall करना है. We said that infinitive is a verb used as noun. What did we discuss about that day? Infinitive is a noun. Infinitive is a verb used as noun. That is also known as verbal noun. What is it known as? Verbal noun. Listen. So we are doing non-finites and we did infinitives. Yes, sir. Select that. We are doing non-finites. We are doing And non-finite. yes, and there are three types of non-finite. The first one being infinitive, the second one is participle, the third one is gerund. So today we will talk about participles as well as gerund. वो खत्म कर देंगे. आप बताइए कि before we go to participles, what should we do? We should know what are participles. अगर आपसे कोई पूछेगा कि what do you mean by participles, देखिए, participles are verbal adjectives. Participles are vowel adjectives. Vowel adjectives. Am I right? Well, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What are participles? Sir, participle. Vowel adjective. adjective. What is verbal? दिमाग लगाओ थोड़ा. What is a verbal adjective? A verb used as adjective. Adjective. Now you both of you tell what is the function of an adjective? Sir, to express or to check the quality. Sir, विशेषण. In English, what do you mean by adjective? Adjective qualify a noun or a pronoun. Yes, Actually देखिए, उस विशेषण ही उसी को बोलते हैं. वो क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है. An adjective qualifies a noun or tells more about a noun or a pronoun. Now then you will ask, sir, you are talking about participles and you are talking about adjective. Yes, because they are verbs, but they are used as adjective. That is why they are called verbal adjectives, or they may be called verb used as adjective. Now some of the examples you'll see now, you will really understand how they qualify noun. Look at the example. Look at that. It being a holiday today. It being a holiday today, all shops are closed. All shops are closed. Now Manish has to tell me one thing, then Sushant will tell. It being, B-E-I-N-G, this is participle here. It is be plus ing. Be is a verb. Yes. And you know, there is a present participle, there is a past participle, V3, there is a perfect participle. But here, it is present participle. It being a holiday today, आज छुट्टी था इसलिए दुकानें सारी बंद हैं. अगर मान लीजिए अगर दो सेंटेंस दिया रहता, had it been a case of two sentences कि it is a holiday today, all shops are closed, और बोला जाता है कि कंबाइन कीजिए, तो आप कैसे कंबाइन करते हैं? ऐसे ही कंबाइन करते हैं. Had you been given two sentences, मान लीजिए आपको कहीं पर ऐसा होता है कि आंसर्स को कंबाइन करना रहता है. There are many instances in your, जैसे आप देखिए, हम आपको पोएम पढ़ा रहे थे, टाइगर इन ए जू, उसमें एक इंस्टेंस आया, as we human being have made them captive. Who are responsible for making the tiger a captive? Human beings. तो उसी को हम लोग कैसे देखिए, human being selfish and cruel to animals have really been responsible for their miserable condition. और देखिए एक ही सेंटेंस में आ गया, देखिए human being cruel and selfish are responsible for the miserable condition of the animals. एक सेंटेंस में आपने पार्टिसिपल्स का यूज करके कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस बना. और देखिए दूसरा जो छोटा बच्चा रहेगा क्लास 6-7 का, बोलेगा ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी सेल्फिश, दे आर वेरी क्रूएल, दे हैव मेड द एनिमल्स सफर एंड मिजरेबल. ये तीन सेंटेंस को आपने एक सेंटेंस में दे दिया. ह्यूमन बीइंग सेल्फिश एंड मिजरेबल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द एनिमल. सर यहाँ पे जो बीइंग लगा तभी कनेक्ट करेंगे. हाँ, ये बीइंग पार्टिसिपल है और ये क्वालिफाई कर रहा है. देखिए किसको? हॉलीडे को. हॉलीडे इज ए नाउन. देखिए टुडे और हॉलीडे दोनों को ये क्वालिफाई कर रहा है. आज छुट्टी है, यानी किसके बारे में? आज के बारे में बता रहा है. द वर्ड विच इज क्वालिफाइंग द नाउन टुडे और हॉलीडे, बोथ
हॉलीडे और टुडे, टुडे को भी क्वालिफाई कर रहा है। आज क्यों, अगर क्वेश्चन पूछेगा आज सारी दुकानें क्यों बंद है, व्हाई आर ऑल शॉप्स क्लोज, तो देखिए ये टुडे को स्ट्रेस देगा, टुडे बीइंग ए हॉलीडे। देखिए एक ही चीज है दोनों, टुडे बीइंग ए हॉलीडे ऑल शॉप्स आर क्लोज। आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, टुडे बीइंग ए हॉलीडे, यानी बीइंग इज क्वालिफाइंग डायरेक्टली द नाउन टुडे। आपको समझ में आया? हाँ सर। तो आप यही तो एडजेक्टिव का काम है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। अब देखिए ये तो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मान लीजिए आपको ये पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल देना है। देखिए राइट डाउन, अ ब्रोकन चेयर was kept for repairs, तो यहाँ पे केप्ट हो जाएगा। नहीं, ब्रोकन, ब्रोकन चेयर को क्वालिफाई करना चाहिए ना, नाउन को। तो what kind of chair was kept for repairs? Broken. So the word broken, which is a past participle, is qualifying the noun chair. यही तो आपको समझना है। This is what you have to understand. Yes, sir. That a participle will act as an adjective, though it is a verb. So what kind of chair was kept for repair? Broken. A broken chair. अच्छा देखिए कितना सुंदर ये एग्जाम्पल है। रोलिंग स्टोन्स गैदर्स नो मॉस। बिना मतलब का अगर आप रोल कीजिएगा स्टोन पर तो घास छिलाएगा नहीं, छिलाएगा नहीं, यूजलेस है। बिना मतलब बिना डायरेक्शन का आप काम कीजिएगा, इट इज यूजलेस। रोलिंग स्टोन्स गैदर्स नो मॉस, वहां रोलिंग जो हो गया इज ए पार्टिसिपल विच इज क्वालिफाइंग स्टोन्स। समझ रहे ना? Yes, sir. तो ये प्रोवर्ब है। अब आइए, ये हो गया क्या चीज का एग्जाम्पल, बोलिए। ये हो गया Past participle. अब आइए परफेक्ट पार्टिसिपल। सर थर्ड एग्जाम्पल, तीनों को जान लीजिए। having been defeated several times, तो यहाँ पे बीन हो जाएगा सर। नहीं तीनों है। देखिए having plus V3, having plus been plus V3 और having plus V3, यही है परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्मूला। याद रखिएगा, having plus been plus V3 और having plus क्या चीज, बोलिए। having plus been plus V3 या having plus V3। having been defeated several times, king decided to give up the battle. give up means त्याग देना, give up the battle। वो सोचा कि बार बार मैं डिफीट हो रहा हूं तो मैं लड़ाई छोड़ दूं। तो देखिए अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू गिव अप द बैटल, द आंसर इज हैविंग बीन डिफीटेड सेवरल टाइम्स। तो ये डिफीटेड किसको क्वालिफाई कर रहा है? नहीं, सेवरल टाइम्स, ये नाउन यहां है। What made the king decide to give up? The king decided to give up because he has been defeated several times. He has been defeated. तो ये king के conditions को explain कर रहा है। It talks more about the condition of the king. और ये several times को भी qualify कर रहा है। एक बार नहीं, अनेकों बार डिफीट हुआ, अनेकों बार डिफीट। हाँ, अब जैसे देखिए he having passed the board exam wants to join a college। किसको, देखिए ही प्रोनाउन है, इसको ये हैविंग पास्ट क्वालिफाई कर रहा है। वह क्यों बोर्ड क्यों कॉलेज ज्वाइन करना चाह रहा है? बोर्ड ऑफ पास कर गया। तो हैविंग पास द एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग द प्रोनाउन ही, और उसके बारे में ये ज्यादा बता रहा है। दिस इज नाउ एक्सप्लेनिंग व्हाई ही वांट्स टू ज्वाइन ए कॉलेज, ही हैविंग पास। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आपको देखने में भी अच्छा लग रहा है, बनाने में भी अच्छा लग रहा है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन आपको करना चाहिए कि सर हम लोग को ये ब्रीफ में बताइए कि how should we make use of participles, because generally in exam it will be one word completion of blank, or it will be one word completion or it will be a correction of sentence। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि participles कहाँ यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे? तो एक दो छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी पार्टिसिपल्स डायरेक्टली नहीं यूज होता है, समझे ना? वो भी आपको देखना होगा कि नाउन और प्रोनाउन है कि नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए
एक एग्जांपल लीजिए, ए वुमेन वाज कैरिंग ए बास्केट ऑन हर हेड, ठीक है, वाज कैरिंग, तो यहाँ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, Yes, sir. पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वाज कैरिंग इज। अब देखिए इसी में एक कहानी मैंने छोटा सा बना करके देखिए, तो उसमें कहाँ पार्टिसिपल यूज हो रहा है, देखिए, while carrying some eggs in a basket on her head, the woman suddenly, चाय बना लीजिए, है ना, बना लीजिए, the woman suddenly fell down and all the eggs got broken, smashed। तो थोड़ा सा एक कहानी के रूप में छोटा सा शुरू कीजिए। while carrying a basket over her head consisting of several eggs, the woman fell down and smashed all her eggs। Sir, while carrying यहाँ carrying क्या हो गया, प्रेजेंट participle, लेकिन यूज हो रहा है, देखिए। yes sir, अब जैसे कि मैं टहल रहा था, अचानक मुझे एक पीछे से बाइक ने आके धक्का दे दिया। अब कैसे बनाइएगा बोलिए, जब मैं टहल रहा था एक तो यही तो आपको when नहीं यूज करना है। while walking, हाँ, while I was walking I was hit by a bike। yes sir, ये जहां कीजिएगा तो आपका अच्छा लगेगा। अच्छा है, ये भी कर सकते हैं, I was hit by a bike from behind while I was walking। क्लियर हो गया। अब आइए छोटा एग्जाम्पल लेकर के इसको क्वालिफाई करके देखा जाए। देखिए आप एक साधारण एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको एग्जाम में अपीयर होना है, ठीक है, आप 2 बार एग्जाम क्वालिफाई किए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तीसरा बार आपको चांस मिला, कैसे बोलिएगा, हैविंग क्वालिफाइड द एग्जाम 2 times और twice, yes sir, now I am getting a chance to appear for the viva। हाँ, पहला यूनिट टेस्ट में आपको खराब परफॉर्मेंस हुआ, दूसरा में आपने इंप्रूव किया, तो बोलिएगा हैविंग डन पुअरली इन द फर्स्ट टेस्ट I improved my performance in the second one। in the second, देखिए, having been scolded by the teacher I decided to work hard। having been scolded by the teacher I decided to work hard। तो ये पार्टिसिपल्स का आपका हर जगह यूज आएगा, राइटिंग द आंसर्स भी, लेकिन मेनली जो आपको वर्कआउट करना है पार्टिसिपल्स का, जिसको आप फिल इन द ब्लैंक से यूज करेंगे, वो हम लोग कल करेंगे। अब आइए थोड़ा जेरेंड के बारे में, दोनों को कंपेयर करना है yes sir, कि पार्टिसिपल्स और जेरेंड दोनों में, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी है ना, जेरेंड में भी आईएनजी रहता है, लेकिन कैसे डिस्टिंग्विश कीजिएगा कि कौन पार्टिसिपल से कौन जेरेंड है। जेरेंड इज ए वर्बल नाउन, वो नाउन का काम करेगा, और नाउन का 4 ही फंक्शन है। नाउन कैन बी ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, नाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब इन ए सेंटेंस, नाउन कैन बी ए कॉम्प्लीमेंट, नाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, जबकि एडजेक्टिव का फंक्शन बहुत ज्यादा है। It can be an attribute in a sentence, it can qualify a noun and a pronoun, it can also qualify another adjective in a sentence, another adjective in a sentence। So participles have more functions than noun। नाउन का तो 4 ही फंक्शन है, इट कैन बी ए सब्जेक्ट। अब तो जेरेंड में हम लोग सीधे लिखेंगे, देखिए जेरेंड ऑब्जेक्ट को भी क्वालिफाई करता है ना। हाँ, जेरेंड्स आर verbal nouns written in the form of sir, I have a question, हाँ verb plus ing ask। but sir, infinite is also a verbal noun, तो उसमें 2 plus verb में लिखा जाता है। yes sir, दोनों में देखिए कितना अंतर है। इन्फिनिटिव इज ऑल्सो ए वर्बल नाउन, बट इट इज रिटन इधर 2 plus V1 और इट इज सिंपली V1। कहीं कहीं पे बेयर इन्फिनिटिव रहता है, उसमें 2 नहीं लगाया जाता है। जैसे हेल्प है, हेल्प मी सॉल्व द क्वेश्चन, नेवर से हेल्प मी टू सॉल्व द क्वेश्चन। हेल्प इज ऑलवेज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव। हेल्प सेव द एनवायरमेंट, नेवर से हेल्प टू सेव द एनवायरमेंट। तो देयर आर सर्टेन इन्फिनिटिव्स व्हिच आर नेवर यूज्ड विद टू, है ना। yes, जैसे यूड रादर गो, द टू गो नहीं ना लिखिएगा, no sir, यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट टू वरी नहीं ना लिखिएगा, No, sir. तो नीड नॉट के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव लगता है, तो वो सब भी जानना चाहिए। खैर ये समझ लीजिए, जेरेंड्स आर वर्बल नाउन्स, बोलिए जेरेंड्स आर वर्बल नाउन्स gerunds are verbal noun, रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। written अब इसका in the देखिए form- एक एग्जांपल देख लीजिए, देखिए वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। 2-3 एग्जांपल देखिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, BELIEVING, सीइंग इज बिलीविंग। यहाँ पे ये जेरेंड क्या होगा?
जेरन दोनों है, Walking सीइंग भी और है, बिलीविंग, यहाँ वॉकिंग है, वर्ब प्लस आईएनजी, ये सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों है। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग देयर, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग देयर, गोइंग देयर, अंडरलाइन गोइंग। चौथा हो जाएगा शी एंजॉयज रीडिंग, ENJOYS, एंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स, एंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स, नॉवेल्स। अब आइए चारों में देखिए, अब उसे पॉज कर दीजिए, इसको हम लोग आगे खाली पॉज करके छोड़ देंगे, पॉज करके स्टॉप कर देंगे, हाँ पॉज करके स्टॉप, यस छोड़ दीजिए।